Welcome everyone for the next lecture. In this lecture, we'll be starting with regular expression. This regular expression is a part of finite automata, and basically, so there are two terms. One is regular, other one is expression. Okay, so we'll be starting with the definition. So till now, what we have seen, so there are basically, there are two possibilities by which we can say a particular language is regular. So one of the possibilities, like if it is generated from a regular grammar, then the language is regular. Other possibilities, if we can design some sort of finite automata or finite state machine for any language, then also we can say that language is regular. Now we'll discuss the third aspect of that regular language. So what is a regular expression? So we'll be starting with the definition. So regular expression is basically a compact or concise way of representing regular languages, right? So one representation is we can design a finite automata. Okay. Second one is if any language is generated from, any language is regular if it is generated from some regular grammar, right? Uh, or we can design some sort of finite state machine for that, then also it is regular. Third one is if I can write a regular expression for any language, then also it is regular. Okay. So if I take one example, so like आपने you must have seen algorithm, flowchart, pseudocode, right? You must have heard all these different representations. So basically है क्या? All these are different representation of the same thing, right? Uh, Basically what we are having a problem, and if we want to represent the solution of any problem, we can represent it in the form of a flowchart, or we can write an algorithm, or the third one is we can also write a pseudocode for that. तो सेम चीज यहाँ पे है कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर होगी अगर हम उसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं, और हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट स्टेट मशीन कैसे बनाते हैं, वो दैट विल डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, रेगुलर, नाउ वी अंडरस्टैंड रेगुलर वर्ड कहाँ से आ रहा है, हमारा रेगुलर लैंग्वेज से। और एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सप्रेशन इज अ बेसिकली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वी रिप्रेजेंट with the help of some, we do have some operators and we do have some operands, right? तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के। तो दिस नोटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स। तो जो हमारे पास अल्फाबेट के सिंबल हैं वो रहेंगे, और उसके साथ हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स रहेंगे विच आर एक्चुअली यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लींस क्लोजर। बेसिक हमारे पास यही ऑपरेटर्स हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं क्विकली कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या है। एज यूजुअल हमारे पास पैरेंथेसिस होता है। बेसिकली पैरेंथेसिस हम किस लिए यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में? ऑर्डर बताने के लिए, ठीक है? लाइक इन विच ऑर्डर अ पर्टिकुलर ऑपरेटर इज गोइंग टू बी अप्लाइड। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, अगर मैं किसी भी रेगुलर, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप इवेलुएट करते हो तो व्हाट यू गेट सम रिजल्ट। सिमिलरली अगर मैं किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता हूँ, या आप कह सकते हो उसे डिकोड करता हूँ, देन व्हाट आई गेट, आई, if I am having any regular expression, if I am decoding or evaluating any regular expression, obviously I'll get the regular language। ठीक है, और रेगुलर लैंग्वेज क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो मुझे अलग अलग स्ट्रिंग मिलेंगी, राइट? तो पैरेंथेसिस हो गया। दूसरा क्लींस क्लोजर। हम पहले से हमें पता है क्लींस क्लोजर क्या होता है। तो बेसिकली क्लींस क्लोजर इज इट कंटेन्स द स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ 0। तो इसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है, फिर लेंथ 1, 2 एंड सो। फिर हमारा क्या होता है उसके अलावा?
हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर होंगे? सो वी डू हैव पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर और क्लींस क्लोजर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पॉजिटिव क्लोजर जो हम लेते हैं बेसिकली वहां पे जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। क्लींस क्लोजर में इट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होगा, स्ट्रिंग लेंथ 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पॉजिटिव क्लोजर एंड द क्लींस क्लोजर। तो अगर मैं क्लींस क्लोजर में से एप्सिलॉन यानी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, then very important is these two operators, so these two are actually new। so one is concatenation जिसे हम डिनोट करते हैं डॉट से। so if I take one example, so suppose I am having two regular languages, one is L other one is M। ठीक है, ऑब्वियसली लैंग्वेज है तो इसका मतलब इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे L के अंदर मेरे पास क्या स्ट्रिंग है, वन इज 001 अदर वन इज 10। दूसरी जो रेगुलर लैंग्वेज है इट इज हैविंग एप्सिलॉन एंड 001। जब मैं इनका डॉट या कॉन्केटिनेशन जब मैं करता हूँ, एल कॉन्केटिनेशन एम में लिखता हूँ, तो बेसिकली इनका जो दोनों सेट है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, तो ऑब्वियसली 001 डॉट एप्सिलॉन इज गोइंग टू बी 001। सो दिस विल सी बेसिकली एप्सिलॉन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी फॉर द कॉन्केटिनेशन, राइट। सिमिलरली वी हैव यूनियन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली अगर आप दो सेट्स का यूनियन करते हो तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे ना विदाउट रिपीटिशन। so you will get a set which is having elements from both the sets। तो L इसे हम डिनोट करते हैं प्लस सिंबल से। सो इफ L इज वन ऑफ द लैंग्वेज, वन रेगुलर लैंग्वेज, M इज अनदर रेगुलर लैंग्वेज, तो जब मैं L प्लस M करूंगा दैट इज L यूनियन M। so it will have the strings from both the languages, elements from both the sets। 001 यहाँ पे आ गया, फिर 10 आ गया, राइट, 11 आ गया, और यहाँ पे 110 आ गया। ऐसा भी हो सकता था, लेट सपोज एम में आपके पास सपोज 10 फिर से रिपीट हो सकता था, तो हम 10 को हम एक ही बार लिखेंगे ना, ये सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें रिपीटिशन नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं, क्लींस क्लोजर, पैरेंथेसिस, यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड पॉजिटिव क्लोजर भी हम यूज करते हैं बट रेयरली यूज होता है, राइट। देन टाइप्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, वन इज प्रिमिटिव अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास तीन है, जिसमें हमारा आता है फाई। फाई बेसिकली क्या डिनोट करता है, एम्प्टी सेट, राइट। फाई का मतलब क्या है, देयर इज, इफ अगर मैं मशीन की टर्म में बात करूं, देयर इज नो ट्रांजिशन, राइट। देन एप्सिलॉन और लेम्डा, बेसिकली इट इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, राइट। तो कुछ बुक्स में आपको एप्सिलॉन मिलेगा, कुछ में लेम्डा मिलेगा, दोनों बेसिकली एक ही चीज है, राइट। और तीसरा होता है ए। ए इज एक्चुअली एनी सिंबल दैट बिलोंग्स टू द अल्फाबेट। So these three are primitive regular expression। Non-primitive regular expression कब बनते हैं, when we apply any operator। Okay? तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लींस क्लोजर अप्लाई किया या पॉजिटिव क्लोजर अप्लाई किया या कॉन्केटिनेशन किया और यूनियन किया, so all these whatever the expression I am getting after applying the operators, that I'll call it as non-primitive regular expression। ठीक है, उसके बाद कुछ लॉज हैं, एल्जेब्रिक लॉज, जो हमारे कॉन्केटिनेशन यूनियन फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो यूनियन हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दैट मींस एल यूनियन एम। एल एंड एम बेसिकली आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके, तो एल यूनियन एम और इज इक्वल्स टू एम यूनियन एम। तो ये बहुत सिंपल है, दो सेट्स का जब आप यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली उसमें सेट में ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता है, सिर्फ उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप एल यूनियन एम करो या एम यूनियन एल करो, यू विल गेट द सेम थिंग। एसोसिएटिव लॉ। अब अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारा कॉन्केटिनेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स अगर आप कहते हैं कि एल कॉन्केटिनेशन एम, तो ये एम कॉन्केटिनेशन एल के इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर आप कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लो, लेट्स से आपके पास एल इज समथिंग लाइक, सपोज सिंपल ए है और एम के अंदर जो स्ट्रिंग है वो है मेरी बी। ठीक, सो वेन एवर आई विल डू एल concatenation m, so obviously I'll get a b। ओके, और जब मैं करूंगा m concatenation l, so I'll get
बी ए। ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट सिमिलर, है ना। अगर आप मशीन के रिस्पेक्ट में देखो तो पहले जो सिंबल आ रहा है वो ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है, ठीक है। जैसे आप कहो कि कोई भी वैल्यू है आपके पास 1 5 है, ऑब्वियसली 1 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 1, ऐसे समझ सकते हो। कॉन्केटिनेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ यूनियन कॉन्केटिनेशन दोनों फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आप एम और एन का यूनियन पहले करो या एल और एम का यूनियन पहले करो, इट विल गिव यू द सेम थिंग। अल्टीमेटली आपको तीनों सेट का यूनियन करना है, तीनों सेट के एलिमेंट लेने हैं। कॉन्केटिनेशन भी हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर मैं एल और एम को पहले कॉन्केटिनेट करता हूँ फिर उसे एन के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इट विल गिव मी द सेम थिंग। ओके, देन कम्स आइडेंटिटी एंड एनिहिलेटर्स। बेसिकली आइडेंटिटी क्या है कि यूनियन के लिए जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है फाई। दैट मीन्स अगर मैं फाई इज बेसिकली द एम्प्टी सेट, एल इज द सेट ऑफ सम स्ट्रिंग, तो अगर मैं इनका यूनियन करता हूँ सो इट विल बी इक्वल्स टू एल यूनियन फाई एंड दैट विल एक्चुअली गिव मी एल। आप ऐसे समझो दो सेट का यूनियन कर रहे हो, एक सेट एम्प्टी है तो ऑब्वियसली विल द रिजल्ट विल बी द अदर सेट, राइट। वो सेट है हमारा एल। तो फाई को हम आइडेंटिटी बोलते हैं यूनियन। सिमिलरली हमारा एप्सिलॉन जो है वो आइडेंटिटी होता है कॉन्केटिनेशन की। दैट मींस एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन एल या एल कॉन्केटिनेशन एप्सिलॉन, इट विल एक्चुअली गिव यू एल। ऑलराइट, देन फाई इज द एनिहिलेटर फॉर कॉन्केटिनेशन। यानी अगर आप फाई के साथ किसी भी लैंग्वेज को कॉन्केटिनेट करते हो तो आप ऐसे समझो कि फाई इज वन ऑफ द एम्प्टी सेट और आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो एम्प्टी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ, ऑब्वियसली विल गेट फाई, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा कॉन्केटिनेशन जो है दैट आल्सो फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट मींस आप uh, जो कॉन्केटिनेशन है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर द यूनियन। सो इट विल गिव यू एल डॉट एम यूनियन एल डॉट एन, है ना। एल कॉन्केटिनेशन एम यूनियन एल कॉन्केटिनेशन। देन आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो सिर्फ यूनियन आपका आइडेम्पोटेंट लॉ फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर आप दो सेट्स का यूनियन कर रहे हो, बहुत बेसिक सी चीज है। एल में लेट सपोज आपके पास क्या है, आपके पास दो स्ट्रिंग है, वन इज ए बी अदर वन इज बी ए। अगर आप एल यूनियन एल करते हो, ऑब्वियसली आपको रिपीट तो करना नहीं है, एक ही बार लिखना है एलिमेंट को, तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, ए बी और बी ए ही तो लिखोगे, राइट। तो एल यूनियन एल इज एक्चुअली एल। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर एल कॉन्केटिनेशन एल। यानी अगर आप एल डॉट एल करते हो ना यहाँ पे, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स यू विल गेट ए बी, ठीक है। देन ए बी ए, देन बी ए बी एंड बी बी ए। एल डॉट एल इज एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू एल, है ना। इट विल गिव यू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। आइडेंटिटी लॉ हमारा सिर्फ कॉन्केटिनेशन फॉलो नहीं करता है, यूनियन फॉलो करता है। देन ऑब्वियसली अगर मैं क्लोजर की बात करूं तो एल का क्लोजर और फिर उसका क्लोजर, इट विल गिव यू एल क्लोजर। तो इसे ऐसे समझते हैं, देखो लेट से आपके पास एल में है, सिंपल मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है सपोज, राइट। नाउ इफ आई डू एल स्टार तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी पावर ले लूंगा सारी, ए रेज टू पावर 0 इज एप्सिलॉन, देन ए रेज टू पावर 1 इज ए रेज टू पावर 2 इज एक्चुअली 2 ए ट्रिपल ए, है ना, सारी पावर्स आ जाएंगी। इनफाइनाइट लैंग्वेज बनने वाली है ये। दिस इज व्हाट क्लीन क्लोजर ऑफ एल। अब मैं इसका फिर से क्लीन क्लोजर करता हूँ, यानी एल स्टार की पावर स्टार। नाउ सी, सबसे पहले आप एप्सिलॉन का क्लीन क्लोजर फाइंड आउट करोगे, तो एप्सिलॉन का क्लीन क्लोजर क्या होगा, एप्सिलॉन की पावर 0। तो एप्सिलॉन की पावर 0 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ही हो गया। एप्सिलॉन की पावर 1 भी एप्सिलॉन होगा, दोबारा मैं लिखूंगा नहीं। एप्सिलॉन की जितनी भी आप पावर लोगे अल्टीमेटली आपको एप्सिलॉन ही मिलेगा। अब आप ए की पावर करो, फिर से ए की पावर 0 से स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि क्लीन क्लोजर ले रहे हो, तो ए की पावर 0 फिर से एप्सिलॉन आएगा, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन। देन ए टू द पावर 1 इज ए,
a to the power 2 is a, right? Then triple a and so on. देन ए की पावर करोगे आप फिर से ए रेज टू द पावर 0, फिर एप्सिलॉन मिलेगा। ए रेज टू द पावर 1 इज ए, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जब मैं इसका एल स्टार की पावर स्टार कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए इज ऑल्सो देयर। तो अगर मैंने एक बार ए स्टार कर दिया तो ए स्टार बेसिकली क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, दैट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो एक बार अगर कहीं पे ए स्टार आ गया है तो फाइनली मेरे पास क्या आने वाला है, एल स्टार ही आने वाला है। सो दैट इज वाई एल स्टार, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो एल का पॉजिटिव क्लोजर फिर उसका क्लीन क्लोजर। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि जब आप एल का पॉजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो ये चीज हट जाएगी, है ना, एप्सिलॉन हट जाएगा। बट फिर से जब मैं इसका स्टार यानी क्लीन क्लोजर एल का पॉजिटिव क्लोजर का मैं क्लीन क्लोजर करने जाऊंगा तो अगेन आई विल गेट ए स्टार। और एक बार ए स्टार आ गया तो यूनिवर्सल लैंग्वेज आ गई। सो रिजल्ट इज फाइनली गोइंग टू बी एल स्टार, ठीक है। देन फाइव रेज टू द पावर स्टार। अब देखो फाइव डॉट फाइव तो फाइव होता है ना, क्योंकि फाइव क्या है, एनिलेटर है। लेकिन जब मैं स्टार कर रहा हूं तो सबसे पहला क्या आएगा, फाइव रेज टू द पावर 0 आएगा, और किसी की भी पावर 0 मतलब एप्सिलॉन तो आना ही है। और इसके बाद फाइव रेज टू द पावर 1 इज फाइव, उस फाइव को लिखने का कोई मतलब है नहीं, वो तो एम्प्टी सेट है, राइट। देन फाइव रेज टू द पावर 2 इज अगेन फाइव। तो बेसिकली फाइव रेज टू द पावर स्टार इज अगेन एप्सिलॉन, है ना। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि क्लीन क्लोजर पे क्या होगा, राइट। देन एप्सिलॉन रेज टू द पावर स्टार, फिर वही चीज है। एप्सिलॉन रेज टू द पावर स्टार मतलब एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 0 मतलब एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन की पावर 1 फिर से एप्सिलॉन, दोबारा नहीं लिखना है। एप्सिलॉन की पावर 2 क्या होगा, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन भी क्या है, एप्सिलॉन है। तो अल्टीमेटली एप्सिलॉन रेज टू द पावर स्टार इज अगेन गोइंग टू बी, राइट। तो ये हमारे बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन थे, ऑपरेटर्स हमने देखे, और उसके बाद हमने व्हाट आर द डिफरेंट एल्जेब्रिक लॉज दैट आर बीइंग फॉलोड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में we'll continue with these regular expressions, and probably we'll see कि how to convert between the finite state machines and the regular expressions, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।